چھوڑو. قرآن کریم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن اتارا ہے تقریباً 23 سالہ عرصے میں اتارا رب العالمین نے، اور اس قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا۔ ایک قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہم اپنے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ جب تک ہم کسی کے سامنے پڑھ کر نہیں بتلاتے تب تک ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارے قرآن کے صحیح اور غلط پڑھنے ہیں۔ جیسے مثلا اب بچوں نے یہاں قرآن کی چند آیات پڑھ کر بتلائی ہیں۔ ابھی عام طور پر اگر قرآن پڑھا جائے جیسے سورۃ الفاتحہ، ایک ہوتا ہے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین آمین تک۔ اب جو عام پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو کہیں گے نہیں ماشاءاللہ برابر پڑھے۔ اب تھوڑا اس سے بہتر پڑھنے والے اگر پوچھا جائے ان سے کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے اندر چند لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں ہاں نہیں پڑھی گئی، یہاں ہاں پڑھی گئی، یہاں را کو بول نہیں کیا گیا، باریک پڑھا گیا۔ یہ کون پکڑیں گے؟ جنہوں نے تجوید سے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ ہم اپنے حساب سے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ آج ہمارا اگر پڑھنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے ظاہری اعتبار سے ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کو صحیح سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ ہم اپنی مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ جو لوگ 3 دن 40 دن 4 مہینے لگا کر آئے ہیں انہوں نے 10 سورتیں یاد کی ہوں گی اور وہ نماز کے اندر ان 10 سورتوں کو پڑھتے بھی ہوں گے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ قرآن ہی جو ہے چند لوگوں کے لیے بددعا کرتا ہے، اور جب پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کو گویا اس کا آپریشن کر کے رکھ دیتے ہیں، صحیح طریقے سے اس کو پڑھتے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ غلط پڑھنا، قرآن کریم کے اندر 2 چیزیں ملتی، ایک ہے لحن جلی، ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے ہا کو ہا پڑھنا، قاف کو کاف پڑھنا، صاد کو صا پڑھنا یا سین پڑھنا، ضاد کو دال پڑھنا، جیسے پڑھتے ہیں ولا ضالین۔ ظاہری اعتبار سے آپ یوں بیٹھ کر سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ حضرت نے دال پڑھی ہے، دال نہیں پڑھی ہے۔ ضاد کا مخرج ہوتا ہے نکالنے کا، طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ جیسے رمضان، ہم سنتے آئے ہیں رمضان، لہذا لکھا کیا جاتا ہے RAMADAN رمضان، اصل رمضان نہیں ہے، اس ضاد کو یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دانت کے یعنی کہ یہ جو ربایا جس کو کہتے ہیں نا موٹے موٹے جو دانت ہیں، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، 2 طرف سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضاد کو نکالا کرتے تھے۔ لہذا یہاں پہنچے گی
जितने पढ़ने के तरीके, चाहे आपके उर्दू के बात करने का अलग अलग अंदाज होता है, किसी तरह कुरान करीम का भी तो होगा, ये भी तो बगैर लहजे का नहीं होगा। तो लिहाजा है कि लहने जली बड़ी गलती जिसको कहते हैं कुरान करीम के अंदर, और ये करना हराम है, कर देना हराम है। किस लिए? कुरान के माने बदल जाते हैं। जैसे हा को हा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, नहीं तो अर्रहमानिर रहीम, यार बड़ी हा है, छोटी हा नहीं पढ़ी जाएगी। अब अगर ये पढ़ा जाएगा, मसलन मानकर चले आप मस्कुरात जो घरों में पढ़ी होगी या किसी और के पास पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे तो आपके साथ पढ़ने वाले कोई भी आपको पकड़ेंगे नहीं कि आपने कौन सी गलती की है। आप अगर आयत को भूलेंगे तो वो कहेंगे कि आपने ये आयत गलत पढ़ी है। लेकिन इन बच्चियों के सामने अगर आप पढ़ेंगे तो ये बच्चियां बोलेंगी आपने यहाँ रा पुर नहीं किए, आपने यहाँ काफ नहीं पढ़ा है, आपने यहाँ हा नहीं पढ़ा है, आपने यहाँ कलकला नहीं किया है, आपने यहाँ इदगाम बिला गुन्ना नहीं किया, यहाँ इदगाम माल गुन्ना नहीं किया, यहाँ आपने इख्फा नहीं किया है, यहाँ इजहार था यहाँ आपने इख्फा किया है, यहाँ कलकला करना था यहाँ आपने कलकला नहीं किया है। पूरे ग्रामर होते हैं कुरान करीम के अंदर। जिस तरह से कुरान करीम बगैर अगर आप जो है तजवीद के पढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसा रुका खाना खाया जा रहा हो। जब तक खाने के साथ मसाले नहीं मिलेंगे, जबान को टेस्ट नहीं मिलता है, ठीक इसी तरह कुरान को अगर बगैर लहजे के आप पढ़ेंगे, बगैर तजवीद के अगर आप पढ़ेंगे, भले आपको मजा आता हो, हम लोग को नहीं आता। इसके लिए कुरान करीम को तजवीद से सीखा जाए। आज तुमकुर के अंदर हमने मसाजिद में देखा भी है इस मंजर को, बस ये सुनना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कुरान आ गया, ये सुनना चाहते हैं। इसीलिए आज हम हमारे मदरसे के अंदर देखते हैं, मकतब के अंदर, कि जहाँ पर बच्चे कभी पढ़ा करते थे 40-45, आज बिल्कुल 5 पर आ गए। क्यों? हजरत आगे ही नहीं बढ़ा रहे, हजरत आगे ही नहीं बढ़ा रहे। सबसे बड़ी चीज कुरान हो या कोई भी चीज हो, आने के लिए 2 शराइत है उसको हासिल करने का, एक है शौक, एक है खौफ। इन 2 तरीकों से ये चीजें आ सकती है, या तो शौक से आएगा या तो खौफ से आएगा। माशाल्लाह शौक तो कब तक दफन हो चुका है, अब तो है नहीं जिंदगी के अंदर शौक। और खौफ माँ बाप गिराने देते नहीं। स्कूल के अंदर 10 मार पड़ेगी तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, लेकिन मदरसे में पढ़ते हुए बच्चे को अगर 1 मार भी है, खरोज भी आएगी तो पूरा खानदान मस्जिद में पहुंच जाता है। किस लिए? इस कुरान के लिए साहबे किराम ने क्या कुछ पापड़ बेले हैं और हमने क्या दिया। आज जो कुरान हमारे सामने पूरा मुंजमद होकर है, पूरा कुरान हमारे सामने बिल्कुल मिला हुआ मिल रहा है, क्या इसी हालत में कुरान उतरा था? कुरान करीम के उतरने की शक्लें क्या थी? सबसे पहली आयत उतरी है सूरह अलaq की, है ना, सबसे आखिर में पूरी सूरत उतरी है सूरह नस्र की। अगर उस तरीके से कुरान रहता तो आज हम पढ़ सकते थे। कुर्बान जाए साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन पर कि उन्होंने सारी मेहनत करके कुरान को यकजा करके हमें दे दिया। गोया कि उन्होंने हल चलाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, गोया कि उन्होंने हल चलाए और उसके अंदर दाने उन्होंने बिखेर दिए। जब फसल पक गई तो फसल को भी उन्होंने ही काटा, फिर उसको जो है अलग, उसको बालियों से अलग कर दिया, फिर उसको जो है बाकायदा उसका आटा बनाकर, उसको गोंद कर, उसकी रोटियां बनाकर, उसको तल कर, यानी उसको रेडी करके हमारे सामने दे दिया, बस आपका काम है खाना। लेकिन हमारे अंदर ये भी सलाहियत नहीं रही कि हम उसको पढ़ सके। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, अभी पूछे उनकी जिंदगी के बारे में, कुरान करीम को हासिल करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर चला करते थे। 2 से 3 किलोमीटर दूर, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर मौजूद है। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से जो है, मदीने की बात कर रहा हूँ, अपने घर से जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर जाकर खड़े हो जाते। लोग जो कोई भी जो है इस्लाम में दाखिल होने के लिए जा रहे होते थे मदीने में, वो लोगों को खड़ा करके कहते कि तुम तो कहाँ जा रहे हो? तो कहते कि हम जा रहे हैं, नबी का ज़हूर हुआ है मदीने के अंदर, हम उनके पास जा रहे हैं ताकि हम इस्लाम को हासिल करें, ईमान को हासिल करें। तो वो उनसे कहते कि ठीक है, जब आप वापस लौटोगे ना तो नबी ने आपको क्या सिखाया वो आप मुझे सिखाते जाना। तजर्बे की सीख, जैसे हमने कहा ना, एक है शौक, एक है खौफ, इसी तरह 2 और चीजें, एक है तलब, एक है तड़प। आपके अंदर तलब और तड़प न हो तब भी हासिल नहीं हो सकता कुछ, और आपके अंदर तड़प और तलब न हो तब भी नहीं हासिल हो सकता कुछ। ये दोनों चीजें लाज़िमी है जिंदगी के अंदर। अगर तरक्की करना चाहते हो दुनियावी एतबार से भी, तरक्की करना चाहते हो उखरावी एतबार से भी, आपके अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए।
तलब भी होनी चाहिए, तड़प भी होनी चाहिए। हजरत अबू सलमा के अंदर तड़प भी थी, तलब भी थी, इसीलिए इनको 2 किलोमीटर जाना आसान पड़ा। हमारे अंदर तलब और तड़प भी नहीं है, इसीलिए मस्जिद के सामने मौजूद होता है हमारा घर, हम अंदर नहीं जाते। वजह यही है हमारी, लिहाजा जाकर वहां पर खड़े हो जाते, रोजाना खड़े हो जाते। जो लोग वापस आते थे उनके पास पूछते थे आपको नबी ने क्या सिखाया, तो वहां चंद दिन रुकते थे लोग, नमाज का तरीका सीखते थे वहां रहकर, और नमाज सीखने के बाद नमाज के अंदर पढ़ने के अज़कार कुरान करीम को पढ़ना, वो सीखने के बाद वापस जब आते हुए इनको बतला देते कि इस तरह हमें कुरान करीम की आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। कुर्बान जाए उनके पास सीखने के लिए, ना कलम होता था ना कोई शीट होती थी लिखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनके कहने के बाद उसको रट रट कर उसको याद कर लेते थे। आज हमारे सामने खुला रहने के बावजूद भी हमारे पास उसकी कदर नहीं है, उसको यूं ही याद करते रहे, चंद दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि उनके अपने गांव वाले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे गांव वालों ने भी कहा कि हमारे कुर्ब जवार के लोग अभी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, चलो हम भी दाखिल हो जाते हैं। लिहाजा सारे लोग चले गए, और जैसे ही पहुंच गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज का तरीका बताया, वहीं पर रुकाया। चंद दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अब आप लोग चले जाओ, जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से जिसको ज्यादा कुरान याद हो उसको अपना इमाम बनाना। ये कहकर भेज दिया। लिहाजा सब लोग वापस लौट आए, जितने लोग इनके बाद गए हुए थे, मतलब इन्होंने तो हर एक आदमी से पूछ पूछ कर याद किया था, बाकियों ने याद नहीं किया था। लिहाजा सब लोग पहुंच गए वापस गांव में, नमाज का जब वक्त हो गया तो हर एक आदमी एक दूसरे को कुरान सुनाने लगा। तो पता चला हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे ज्यादा याद था। उस वक्त उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 साल। हमारा 12 साल का लड़का, 22 साल के लड़के को भी कुरान नहीं आता। हम किसी के गिले शिकवे नहीं कर रहे। हमारे पास मस्जिद अक्सा से पढ़ने के लिए बच्चा आया, और वो बच्चा तकरीबन 3 साल हो चुका था मस्जिद अक्सा में पढ़ते हुए, और उसने 19 पारे, बल्कि 29 पारे, 20 पर 9 पारे उसने मुकम्मल किए थे नाज़िला के। हमने उसको शुरू में ले लिया और उसको कहा कि आप यहाँ से पढ़े, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम यहाँ से पढ़िए। तो पढ़ना शुरू कर दिया, अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, उम्मुल मुफ्तियून तक पढ़ लिया उसने। हमने उसको बीच में उंगली रखकर कहा ये पढ़ो, अब वो ऊपर से पढ़ता हुआ वापस आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? 3 साल से हुरूफ की शनाख्त तो नहीं कराई गई थी, बस तोते की तरह रटाया जा चुका है, कुछ याद नहीं होगा। ये 3 साल बर्बाद किसने किए? इसमें गिला शिकवा सिर्फ उस्ताद का नहीं है, इसमें गिला शिकवा उन माँ बाप का भी है जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम पर गौर नहीं किया। यहाँ मदरसे के अंदर बच्चों की तालीम पर असातिज़ा मेहनत करेंगे, क्या बस है? इतना काफी है? कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरे हाथ का सहारा चाहिए इसके लिए। उस्ताद यहाँ मेहनत करेंगे, बच्चा क्या पढ़ा है ये पूछने की जिम्मेदारी माँ बाप की हुआ करती है। देखिए हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को, देखिए हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को, देखिए हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, इनकी जिंदगी कैसी थी? एक कहावत बड़ी मशहूर है, हर एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, हर एक आदमी की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हजरत उमर को इस्लाम के अंदर लाने के लिए हाथ का हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब का कोई शक नहीं है, लेकिन वो फिक्रमंद आखिरत की थी, इसलिए आखिरत की तरफ बुला लिया। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, उसका फिक्र हमेशा दुनिया का था, उसके पीछे भी औरत का ही हाथ था, जहन्नम में ले जाएंगे। औरत के अंदर दीन आएगा ना तो नस्लों तक आएगा, मर्द के अंदर दीन आएगा तो उसके घर के दहलीज तक रहेगा। लेकिन क्या आज हमारी औरत पढ़ी लिखी है? क्या उसके अंदर दीन की समझ है? आज हम समझते हैं दीन किस चीज को, सिर्फ 5 वक्त नमाज को, इससे हटकर हमारे पास कुछ नहीं है कुछ हमारे पास? क्या हम नबी के ताल्लुक से कुछ जानते हैं? रसूल के ताल्लुक से कुछ जानते हैं? नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, कुछ जानते हैं? हम इस्लाम के ताल्लुक से कुछ नहीं जानते। अगर जानना है ना, सबसे आसान तरीका है कुरान करीम। इस पूरे कुरान करीम के अंदर जिसको हम पढ़ना सवाब समझते हैं ना, इसको सवाब सिर्फ बताया अहादीस के अंदर। कुरान करीम के अंदर आप पूरा कुरान पढ़कर देखिए, कहीं भी आपको सवाब की बात नहीं कही गई है, बल्कि कुरान करीम के अंदर रब्बुल आलमीन ने जा बजा बहुत सारी जगहों पर फरमाया, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या फरमाया कुरान करीम में? इस आयत के अंदर क्या फरमा रहा है रब्बुल आलमीन? हम बार बार एक बात अपनी जो है तकारीर के अंदर कहते हैं कि हम वो
अनपढ़ कौम है जिनको अगर अरबी में गाली भी दी जाए ना तो आमीन बोलेंगे। ये हालत है हम लोगों की। हम कुछ नहीं जानते अरबी को। कुरान सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं है। आज हम जो है झूठी खबरें पढ़ने के लिए 5 रुपए देकर अखबार खरीदते हैं, लेकिन सच्ची खबरें पढ़ने के लिए फ्री में कुरान नहीं उठाते हम। इस वक्त बड़ी मजलूम किताब है कुरान करीम, जिस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। समझने वाली किताब को हम अपने घरों के अंदर जो है अलमारी के अंदर डाले रखते हैं। रमजान आ जाता है तो कभी उठाकर पढ़ लिए, किसी का इंतकाल हुआ तो कभी उठाकर पढ़िए। भी रस्मंद है, कोई शौक वाली चीज नहीं है। लिहाजा आप कम अज कम नहीं सीख सके, अपने औलाद को सिखाएं, ताकि आप जब मरे। मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, बेटा तालिबात की भी देखिएगा, दिमाग मुंतशिर हो जाता है, आप लोग आराम से बैठ जाए। तो लिहाजा इतनी कोशिश करें अपने लड़कों के लिए भी और अपनी लड़कियों के लिए भी, कि आपके मरने के बाद आप किसी के मोहताज न बने, कि फला आदमी के पास जाकर बोल दो कि हमें जो है कुरान करीम बख्शा जाए। हालांकि बख्शा तो जाता ही नहीं है, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, या आपके औलाद को पढ़ाए होंगे जब जाकर मिलेगा, कोई अड़ोस पड़ोस वाला आपको नहीं दे सकता। लिहाजा इतनी कोशिश करें कि आपकी नस्ल, आपकी औलाद कुरान करीम को पढ़ने वाली, समझने वाली बन जाए। आप नहीं समझ सके, आज भी आप गलत चल रहे, तो आपकी बच्ची आपको सही रास्ता दिखाने वाली बन जाए। ये कब होगा? जब उलमा इकराम के दरमियान बच्ची आपकी कुरान करीम को पढ़ेगी, समझेगी, जब ही होगा। उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लिहाजा आज इतनी मेहनतें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तालिबात जो है बाकायदा माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में जो है नूरानी कायदे को मुकम्मल की है। याद रखिए, बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी कुरान करीम तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज तक कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसके जरिए से जो है बच्चे उस किताब को पढ़कर कुरान को हिफ्ज किया हो। कुरान को हिफ्ज करने वाली वाहिद किताब है नूरानी कायदा। आज इसके जरिए से हिफ्ज किए हुए, नाज़िरा पढ़े हुए आपको लाखों जो है पढ़े हुए लोग मिलेंगे। यानी कुरान करीम को हिफ्ज किए हुए, नाज़िरा पढ़े हुए लाखों मिलेंगे। इसके अलावा जितनी किताबें आ गई हैं वो चंद दिनों के लिए जो है एक रोशन बनकर सामने खड़ी हो गई, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात बनकर छुप चुकी। लिहाजा जो है नूरानी कायदे और तालिबात से भी गुजारिश, आप ये किताब अब नूरानी कायदा खत्म हुआ, अब आप कुरान के अंदर आ गए तो नूरानी कायदा साइड में नहीं लगेगा, साइड में नूरानी कायदा नहीं लगेगा। ये आपका नूरानी कायदा कब तक? हत्ता यातियकल यकीन तक। मतलब क्या है हत्ता यातियकल यकीन? मौत तक भी इसको अपने साथ ही रखना है। आप कुरान पढ़ते हो, नूरानी कायदे में आपने जितने कवायद पढ़े थे वो सारे कवायद आपके कुरान के अंदर आने ही चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर आपका नूरानी कायदा पढ़ना बेकार है, कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि आपने उसी तरह साल बर्बाद कर दिया जिस तरह हमने उस बच्चे का वाकया बतला दिया। और वालिदैन सबसे अहम किरदार आप लोगों का है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वली कैसे बने? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, होने के बाद जो है उसको रस्मन कोई चीज नहीं की गई थी, रस्में कोई नहीं की गई थी, जो सुन्नत था वही अमल किया गया था। और जब बच्चा बोलने के काबिल हो गया तो उसको हेलो हाय नहीं सिखाया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो उसको सबसे पहले अल्लाह कहलो उसकी ज़बान से। तो लिहाजा पहले उसकी ज़बान से अल्लाह कहलवाया, और दूसरे नंबर पर माँ बाप ने बैठकर मशवरा किया था कि हम अपने बच्चे को कौन सी तालीम दें। आप क्या समझते हैं, आप अपने बच्चे को जो है कोई इंजीनियर बनाएंगे या तो फिर कोई और दूसरा जो है बनाएंगे, तो क्या उसके जरिए से वो दुनियावी एतबार से कामयाब तो जरूर होगा, उखरवी एतबार से होगा। तरक्की दुनियावी एतबार से उसकी हो सकती है, उखरवी एतबार से उसकी हो सकती है। कितने ऐसे मिलेंगे? हम अपनी नजरों से देखी हुई बात आपको बता रहे। जब हम गोवा के अंदर थे तो एक अचानक से जनाजा आ गया, मस्जिद के अंदर जनाजा लेकर चले गए, जहाँ पर खड़ा करके पढ़ी जाती थी नमाज़ी जनाजा। सारे लोग अंदर जा रहे हैं, बस एक आदमी जो है खंबे के पास खड़ा रहा, वहीं पर खड़ा रहा। तो हम भी जा रहे थे, जाते हुए हमने पूछा, भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमने नमाज़ी जनाजा पढ़ी जा रही है, आप नहीं जाते? नहीं, मेरे यहाँ जूते हैं, और वो जूते भी बड़े कीमती हैं। तो अच्छा, फिर अंदर रहने वाले कौन है? वो आपके कोई रिश्तेदार है? मेरे वालिद हैं। कौन? मेरे वालिद। वालिद ने उसको कीमत बतलाई थी, किस चीज की? जूतों की। दुनिया की कीमत बतलाई थी, आखिरत की कीमत नहीं बतलाई थी, इसलिए बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ सका बेटा।
लेकिन हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ने दोनों बैठ कर मशवरा किया कि हम बच्चे को क्या तालीम दें, और दोनों ने एक ही बात पर जो है फैसला कर दिया कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम देंगे। लिहाजा बच्चे को मदरसे को भेज दिया। भेजने पर ही इसी बात पर इत्तेफा करके खामोश नहीं रहे, बल्कि माँ ने वहीं से अपने बच्चे का ताल्लुक रब से जोड़ने की कोशिश कर दी। आज हम अपने बच्चे का ताल्लुक कहां से जोड़ते हैं? जरा क्रिश्चियन के स्कूल में जाकर देख लें, नजारा देख लें वहां का, कि वो हमारे बच्चों का ताल्लुक अपने जो क्रिश्चियनिटी से जोड़ना चाहते हैं, इसे सारी बातें उसको वो सिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़ना सिखाते हैं? ना के बराबर, इल्ला माशाअल्लाह कोई मिलेगा। तो यहाँ माँ ने चाहा कि अपने बच्चे का ताल्लुक रब से जोड़ो। लिहाजा बच्चा जब सुबह के वक्त स्कूल को जाकर मदरसे को जाकर जैसे ही वापस आ गया, आते ही फौरन बच्चे ने कहा अपनी माँ से, अम्मा भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। तो माँ चाहती तो फौरन दे सकती। माँ ने कहा कि बेटा देखो, हमें जब भी भूख लगती है ना, हम सबसे पहले जाकर वजू कर लेते हैं या हाथ पैर धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम मुसल्ला डालते हैं और फिर 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हम हाथ उठाकर मांगते हैं, अल्लाह कोई भूखी हूँ, देखा नहीं। तो मांगते ही फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दे देता है। माँ ने बच्चे का ताल्लुक किस तरह जोड़ा है? तो बच्चे ने जब गया, हाथ पैर धो लिया, मुसल्ला डालकर अपने रब में हाथ उठाकर मांगने लगा, कहने लगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भूख लगी है, किस तरह तो मेरी अम्मी और अब्बू को खिलाता है, अल्लाह तू ऐसे ही मुझे भी खिला दे। जब बच्चे ने चंद बातें कहकर रब्बुल आलमीन से दुआएं कर ली, तो माँ ने कहा, हाँ बेटा अब एक काम कर ले, जल्दी से जितने बर्तन है ना रखे हुए उसके अंदर ढूंढ तू। हम भी यही करते हैं, हमें किसी न किसी बर्तन के अंदर रब्बुल आलमीन खाना दे देता है। बच्चे ने ढूंढना शुरू कर दिया, माँ ने छुपा रखा था एक के अंदर। जैसे ही ढूंढते ढूंढते जैसे ही हाथ में एक प्लेट लग गई और उसके अंदर रोटी मिल गई, तो फौरन बच्चा शौक से चिल्ला उठा, अम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे रोटी दे दी। ये जोड़ा करता है वो माँ बाप कैसे, आज कैसे हमारे माँ बाप, हमारा ताल्लुक किससे जोड़ा जा रहा है? सुबह उठते ही हमें दुनिया की बात समझाई जा रही है, शाम होते ही सो रहे दुनिया की बात समझाई जा रही है, तो फिर इस ज़हन के अंदर, इस दिल के अंदर से दुनिया ही तो होगी, कहाँ से दिन इसको घुसने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लिहाजा कोशिश करे वालिदैन कि जो बच्चा या बच्ची, जो तलबा तालिब इल्म या जो तालिबा यहाँ से पढ़ घर को आती है, क्या पढ़ाया गया तुझे, ये पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। आप पूछेंगे तो बच्चे के जहन के अंदर ये बात रहेगी कि यहाँ भी मुझसे पूछा जाता है, लिहाजा यहाँ का भी फिक्रमंद होगा बच्चा और बच्ची, और जब घर में भी पूछा जाएगा तो घर के एतबार भी फिक्रमंद होगी बच्चा या बच्ची। लिहाजा ये जिम्मेदारियां वालिदैन की है, इसको पूरा करें। साथ ही साथ आखिरी चीज, जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाया जाता हो, आपने एक सबक पढ़ लिया, तालिबात सुन ले, आपने एक सबक पढ़ लिया, अगला सबक आपको दिया जा रहा है, तो इस सबक को छोड़कर आगे को आपको नहीं आना है, बल्कि इस सबक को भी वैसे ही याद रखना है जैसे हफ्ता याद किया यकीन, इसको भी याद भी रखना है। और इंशाअल्लाह जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसका एक होता है आपके शौक की वजह से आपका पूछना। सहाबा इकराम क्या किया करते थे, कोई भी आयत अगर उतर जाती थी ना, सूरह साद के अंदर आयत नंबर 20 पर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमा रहा है अपने नबी से कि इस कुरान करीम के माने, यानी इस कुरान करीम के अंदर हमने क्या उतारा है ये भी आप बतलाओ। किनको? सहाबा इकराम को। सिर्फ कुरान पढ़ने वाला मामला नहीं है, इसलिए जो कुछ रब्बुल आलमीन जो उतारता था सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बतला देते थे, सहाबा पूछते थे इसके ताल्लुक से, जो कुछ ये किस वजह से, इसका शान नुज़ूल क्या है, इस आयत को उतरने की वजह क्या थी, फिर इसके अंदर रब्बुल आलमीन ने अहकाम क्या क्या उतारे हैं, सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बतलाते और सहाबा उसी वक्त उस पर अमल पैदा होते। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है कि आपने एक बार लोगों से पूछा, बैठे हुए लोगों से पूछा कि आपने सूरतुल बकरा को कितनी मुद्दत में मुकम्मल किया? किसी ने कहा 1 हफ्ता, किसी ने कहा 2 हफ्ते, किसी ने कहा 3 दिन। उसी मजलिस के अंदर एक शख्स ऐसा भी था जिसने इल्जामी सवाल किया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, पूछा कि आप कितनी मुद्दत में सूरतुल बकरा को मुकम्मल किए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे सूरतुल बकरा को मुकम्मल करने 2 साल लगे। 2 साल लगे सूरतुल बकरा को मुकम्मल करने। मुश्किल से कितने आड़े या 2.25 पारे का है ना, 2.5 पारे का ही।
تو اس کو مکمل کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگا؟ 2 سال. تو سوال کرنے والے نے واپس اور ایک سوال کیا کہ آخر 2 سال آپ کو کیوں لگے؟ جواب کیا دیا؟ اچھی طرح سے میرا رات کان کھول کر سنیے. فرمایا کہ جیسے میں نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب تک ھدی للمتقین کے تحت میرا عمل نہیں آیا تب تک میں الذین یؤمنون پہ نہیں گیا. یہ تھی زندگیاں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی؟ تو کیا جواب دیا؟ کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، سارا قرآن اللہ کی زندگی تھی، اللہ کے نبی کی زندگی تھی. آپ نے ساری زندگی قرآن کریم کے مطابق گزار کر دکھائی. آج اگر قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، نہ سود خوری والا معاملہ ہوگا، نہ زنا کاری والا معاملہ ہوگا، نہ جھوٹ والا معاملہ ہوگا، نہ خیانت والا معاملہ ہوگا. ہم نے صرف قرآن کو پڑھا، سمجھے ہوتے زندگیاں نہ معلوم کتنوں کی بدل جاتی. آپ موت تک بھی قرآن کریم کو صرف پڑھتے رہیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی زندگی 1 انچ بھی ہٹے گی نہیں. ہٹنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ ذمہ داریاں جو ہے خاص کر کے آپ جو ہے بچوں کی امہات جتنی ہیں، جتنے بھی جو ہے والد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پورے باہر کے کام سنبھال رہے ہوتے ہیں. بچہ زیادہ تر اپنی ماں سے لگا ہوا رہتا ہے، بچی ہو یا بچہ ہو تو اپنی ماں سے لگے ہوئے رہتے ہیں. لہٰذا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم پر لانے کی. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کا جو ہے نچوڑ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم تمام جو ہے قرآن کریم کو سیکھیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر چلیں بھی. اللہ ہم تمام کی سمجھنے کی بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ خصوصاً اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ یہ بہت بابرکت والی مجلس ہے. اے اللہ یہاں پر اے اللہ معصوم بچیاں اے اللہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے اے اللہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ اے اللہ نورانی قاعدہ مکمل کیے ہیں. اے اللہ ان بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے استاد محترم کو قبول فرما. اے اللہ مولانا تبریز صاحب نے ان بچیوں کے اوپر بڑی محنت کی ہے. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ ان بچیوں کی محنتوں پر اے بچیوں کی کامیابی پر محنت کیے ہوئے ہیں اے اللہ تمام اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ذمہ داروں کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ انہوں نے اے اللہ ایک ایسا نظام بنایا ہے جہاں پر اے اللہ ان بچیوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے. اے اللہ تجوید سکھائی جاتی ہے. اے اللہ جس طریقے سے مولانا نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا بچوں کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اے اللہ یہاں پر الحمدللہ تیرے فضل و کرم سے اے اللہ ذمہ داروں کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اے اللہ ہمارے اس ادارے میں ہمارے اس اسکول میں کئی بچے بچیاں اے اللہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے اے اللہ قرآن لیے ہیں. اے اللہ اسے بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس مقدس کتاب کی برکت سے اے اللہ ان معصوم بچوں کی محنتوں کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان بچیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان بچیوں کو اے اللہ دنیا کے علوم سے بھی آراستہ فرما. اے اللہ دین کے علم سے بھی آراستہ فرما. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اے اللہ ان بچوں کو تو نے قرآن کے علم کے لیے اے اللہ قبول فرمایا ہے. اے اللہ تو جسے چاہتا ہے اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرماتا ہے. اے اللہ ان بچوں کے نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ ان بچوں کے اے اللہ فیوچر کو تو بنا دے. اے اللہ ان کے والدین کی محنتوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ان کے والدین کی محنتوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے میں اور اسکول میں
اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی برکت سے سرفراز فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے حاجتوں کو پورا فرما, سب کے ضرورتوں کو پورا فرما, سب کے خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ جو مانگا ہے اے اللہ اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے اے اللہ اسے عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے جو شر ہے اللہ اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس عاجزانہ دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.